Good morning, students. I, Namita Seth, welcomes you in BBVN online classes. So, we were studying about chapter number 2, The Lost Spring. And students, we had read about the two main characters of the story written by Anis Jung. The one main character is Saheb, actually, who belonged to Simapuri, in the periphery of Delhi, and his native place was Dhaka, Bangladesh. Okay, and his main occupation was that he was a rag picker, and for the rag pickers and Sahib and his community, actually, the desire of wearing a सिंगल पेयर ऑफ शूज़ वॉज वेरी मच हाई एक्चुअली, है ना. सो दे वो इवन एक पेयर ऑफ शूज़ की भी डिज़ायर करना उनके लिए बहुत बड़ी बात थी. सो एक्चुअली दे वर suffering from a grinding poverty. Second character we saw the named Mukesh, and Mukesh was a bangle maker and he lived in Firozabad. Okay, and he and his family, actually their ancestral work was bangle making or working in the glass industries. Okay, so without being actually aware of that it is illegal to send the children to work on such risky places, their family actually the family of Mukesh and other living in Firozabad, they actually send their children to such risky places so that their children can earn their livelihood. Okay. Now actually we'll discuss some question answers which is given here. Think as you read. What is Sahib looking for in the garbage dump? So what is Sahib looking for? Sahib is scrounging for some extra money like 10 rupee notes or some silver coins. Where is he and where has he come from? So he is recently living in Simapuri in the periphery of Delhi, and he belongs to Dhaka, Bangladesh. Okay. What explanation does the author offer for the children not wearing footwear? So according to author Anis Jung, she actually, she actually unveils UNVEILS. She actually unveils the truth that actually the rag pickers, they are suffering from grinding poverty. But a great excuse she made that it is the tradition, or we can say it is related to the Indian culture, that many of the persons, they don't wear footwear. So she relate to the tradition, but actually the main truth is that these people, they are suffering from grinding poverty. Okay. Is Sahib happy working at tea stall? Explain. So yes, Sahib was quite satisfied with the money that he was getting there, and quite satisfied with some prestigious job of being a rag picker. He thinks that working on a tea stall is some quite prestigious job, but actually now he is not his own master, and he is doing some compromises with his life. So we can say he was not at all not fully happy, but he was quite satisfied with his job. Okay. Now let's see the remaining part of the chapter. Mukesh family is among them. None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnace with high temperatures, in dingy cells without air and light. That the law, if enforced, could get him and all those 20 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours after losing the brightness of their eyes. So what the narrator is telling कि मुकेश और उसकी जो फैमिली है वो, मतलब उसकी फैमिली हमेशा से, क्योंकि इनका जो एंसेस्ट्रल वर्क था वो यही था, ग्लास मेकिंग इंडस्ट्री में काम करना या बैंगल मेकिंग करना, तो उसकी फैमिली बिलीव करती थी कि उनको, छोटे छोटे बच्चों को वो ग्लास इंडस्ट्री में भेज देती थी या बैंगल इंडस्ट्री में भेजती थी, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता था, और वो नहीं जानती थी कि ये सब चीज़ें इलीगल हैं. ठीक है, दे आर एक्चुअली अगेंस्ट लॉज, है ना. तो एक हाई टेम्परेचर पे इतना
काम करना, और वो भी डिंगी सैल से। हम इसे तो डिंगी सैल से मतलब क्या होता है, बहुत काले और गंदा सा सेल, सेल्स यानी बाउंड्री जो होती है ना, कवर्ड बाउंड्री, तो उसमें एक्चुअली काम करना जहाँ पर एयर, जहाँ पर लाइट नहीं हो। और एक्चुअली वहाँ 20,000 तक बच्चे जो हैं वो गरम गरम फर्नेसेस, हॉट फर्नेसेस के पास में, भट्टियों के पास काम करते हैं, और जो एक्चुअली अपनी डे लाइट यानी कि जो दिन का उजाला है उसको स्लॉग यानी ब्लॉक कर देते हैं। यानी उस कमरे में जहाँ वो बैंगल बनाते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, बहुत हाई टेम्परेचर होता है, एयर भी नहीं होती है, और दिन के उजालों का भी उन्हें पता नहीं होता, वो उस अंधेरे में काम करते रहते हैं। और मैनी अ टाइम्स ऐसा होता है कि काफ़ी लोग जो है अपनी आंखों की रोशनी तक खो देते हैं, क्योंकि इतने हाई टेम्परेचर में फायरवर्क्स करना, वो भी अंधेरों में, इस वजह से कई बार they had to face the blindness also. Mukesh eyes beam as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt. So मुकेश की जो आई है वो थोड़ी सी चमकदार हो गई जब उसने मुझे, मतलब जो नरेटर है, उसको अपने घर ले जाने के लिए बोला कि आओ मेरे पीछे, मेरे घर चलो। और उसको ये कहते हुए बहुत प्राउड हुआ घर के लिए, क्योंकि अभी रिसेंटली उन्होंने अपना घर थोड़ा सा रिनोवेट करवाया है, रीबिल्ट करवाया है, थोड़ा सा वापस से बनवाया है, तो उसे थोड़ा प्राउड हो रहा था इस बारे में। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चॉक्ड विद गार्बेज। तो हाँ, वो दोनों कहाँ से निकल रहे हैं, स्टिंकिंग लेन्स, जहाँ बदबूदार गलियों में से निकल रहे हैं, चॉक्ड विद गार्बेज, जो कि गार्बेज से या कचरे के ढेर से बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी, चौक मतलब ब्लॉक होना, तो ब्लॉक हो चुकी हैं। पास्ट होम्स दैट रिमेन हॉवल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, तो बहुत पुराने घर जो कि हॉवल्स मतलब झुग्गी झोपड़ी जो होती है ना, जैसे मतलब टूटी फूटी झोपड़ियाँ जो होती हैं, तो वहाँ पर विद क्रम्बलिंग वॉल्स, क्रम्बलिंग मतलब टूटी फूटी सी दीवारें, जो कहते हैं ना झरझर अवस्था में, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब बहुत पुरानी हो चुकी होती हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, डल सी जो दीवारें होती हैं। वूबली डोर्स मतलब टूटे फूटे दरवाजे जिनका इवन स्क्रू तक नहीं होता है ना, जैसे जब हम दरवाज़ा लगाते हैं तो साइड में स्क्रूज से वो फिक्स होता है ना, तो वो भी उनके बहुत ढीले ढीले से स्क्रू होते हैं, और दरवाज़ा क्या करता है, इधर उधर झूलता रहता है, मतलब वो अच्छी कंडीशन में भी नहीं होता, ठीक है। देन नो विंडोज़, बिल्कुल दरवाजे में मतलब जो खिड़कियाँ हैं वो भी नहीं थी। Crowded with families of humans and animals coexisting in a प्री-मेवल स्टेट, और यहाँ पर मतलब छोटे छोटे से इनके घर, और उसमें दे वर क्राउडेड विद फैमिलीज एंड एनिमल्स, यानी बहुत सारे छोटे छोटे से घरों में बहुत सारे लोग रह रहे हैं फैमिली के, प्लस एनिमल्स भी रह रहे हैं, बिकॉज मैनी ऑफ द पर्सन दे यूज टू रेयर द एनिमल्स ऑल्सो। कई लोग हैंड्स को रेयर करते हैं, कई लोग शीप गोट इनको रेयर करते हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो एक्चुअली उनके घर में एनिमल्स के साथ साथ ह्यूमंस के साथ साथ एनिमल्स भी पाए जाते थे। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, तो मुकेश एक है ना टूटे फूटे से मकान के आगे खड़ा हो गया। बैंग्स अ वुबली आयरन डोर विद हिज फुट एंड पुशेस इट ओपन, और उसने क्या करा, एक टूटा फूटा सा लोहे का दरवाज़ा था, उसको अपने पैर से बैंग ने धक्का दिया और उसको अंदर की तरफ खोला। वी एंटर अ हाफ बिल्ट शेक, और हम एक ऐसे शेक मतलब जो झोपड़ी होती है ना, जिसे हम बोलते हैं हट टाइप होती है, जिसके ऊपर शेड्स लगे हुए होते हैं, तो एक हाफ बिल्ट आधे बने हुए हम झोपड़ी में पहुँचे। इन वन पार्ट ऑफ इट थैच्ड विद डेड ग्रास, तो एक जो पार्ट है उसका घर का, वो एक्चुअली जो थैच्ड मतलब क्या होता है, ऊपर की तरफ जो हम लगाते हैं ना, ये शेड्स बनाते हैं ना, तो बहुत सूखी हुई घास से शेड बना हुआ था। इज अ फायरवुड स्टोव ओवर विच सेट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनच लीव्स, और उसके वहाँ पे मतलब क्या था
कि एक फायरवुड स्टोव बना हुआ था, और मतलब लकड़ी का जैसे चूल्हा जिसे हम बोलते हैं वो बना हुआ था, और उस पर एक बड़ा सा वेसल, बड़ा सा बर्तन चढ़ा हुआ था जिस पे गरम गरम स्पेनच इज पालक है ना, तो पालक की पत्तियां जो हैं सिजलिंग यानी बहुत ज़्यादा गरम, वेरी हॉट, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा जो उस बड़े से बर्तन में पालक जो है वो गरम हो रखी थी, उसकी पत्तियां जो है वो उबल रही थी। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और ग्राउंड पे एक बड़ा सा एल्यूमिनियम का प्लेटर था, ठीक है, एक एल्यूमिनियम का बड़ा सा प्लेन बर्तन था जहाँ पर कुछ चॉप्ड यानी छोटे छोटे टुकड़ों में काटी हुई, कट इनटू स्मॉल पीसेस, कुछ एक वेजिटेबल्स वहाँ पर थी। अ फ्रेल यंग वुमन इज लुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। फ्रेल यानी बहुत दुबली पतला, वीक होना, ठीक है। सो एक बहुत दुबली पतली सी वीक सी यंग वुमन जो है वो खाना पका रही थी, शाम के मील की तैयारी कर रही थी पूरे परिवार के लिए। थ्रू आईज फिल्ड विथ स्मोक शी स्माइल्स, और क्योंकि अब वो किस पे काम कर रही है, चूल्हे पे काम कर रही है, तो चूल्हे का जो स्मोक है यानी जो धुआं है वो उसकी आंखों में जा रहा है, लेकिन फिर भी वो स्माइल कर रही है। शी इज वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, और वो किसकी वाइफ है, वो है मुकेश के बड़े भाई की वाइफ है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, तो ज़्यादा बड़ी नहीं है वो, लेकिन फिर भी उसने किसकी कमांड संभाल रखी है, मतलब शी इज़ द बहू ऑफ दैट हाउस, और उसने पूरी वो जो कमांड है बहू की यानी जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सारी संभाल रखी है। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, बहू मीन्स द डॉटर इन लॉ थी वो है वो उस हाउस की। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर, और वो किस किस की मतलब सारा काम करती है, एक तो उसके हस्बैंड का, मुकेश का, और उसके फादर का। When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face. तो जब एक बड़ा सा ओल्डर मैन यानी कौन एंटर हुआ, मुकेश के पापा जब घर में एंटर हुए तो वो एक्चुअली शी जेंटली विड्रॉस बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, एक टूटी फूटी दीवार के पीछे वो लड़की जो है वो छुप जाती है। एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, वेल क्या नहीं होता है, पर्दा या घूंघट जिसे बोलते हैं, और फिर वो क्या करती है, घूंघट अपने फेस पर डाल लेती है। As custom demands, daughters-in-law must veil their faces before male elders. तो ऐसा जैसे रीति रिवाज होते हैं, कस्टम्स होते हैं, वैसे जो घर की डॉटर इन लॉ या जो बहुएं होती हैं वो क्या करती हैं, बड़े लोगों के सामने अपना जो फेस है वो घूंघट से ढक लेती हैं। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पोवराइज्ड बैंगल मेकर, और यहाँ पर जो बड़े लोग यानी जो घर के बुजुर्ग हैं वो कौन है, एक बैंगल मेकर है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा क्या है, गरीब है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर फर्स्ट एज अ टेलर दैन अ बैंगल मेकर, तो मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने क्या करा है, काफ़ी सालों तक बहुत मेहनत करी है, हार्ड लेबर करा है। पहले वो एक टेलर थे, हम किसकी बात कर रहे हैं, मुकेश के फादर की बात कर रहे हैं, तो वो पहले एक टेलर थे और उसके बाद में बैंगल मेकिंग का उन्होंने जॉब ऑप्ट किया। ही हैज़ फेल्ड टू रेनोवेट अ हाउस, अब इतना पैसा नहीं था तो वो उन्होंने अपना हाउस जो है वो कभी भी वो रेनोवेट नहीं करा सके, रेनोवेट मतलब रीबिल्ट, रिकन्स्ट्रक्ट करवाना, ठीक है। सेंड हिज 2 sons टू स्कूल, और मतलब अपने बच्चों को जो है वो स्कूल भी ज़्यादातर नहीं भेज पाए। All he has managed to do is teach them what he knows, तो वो सिर्फ इतना कर सके कि उनके जो दोनों बच्चे थे मुकेश और उसके बड़े ब्रदर, उनके फादर ने जितना उन्हें आता था, उसके फादर को जितना नॉलेज था उन्होंने अपने दोनों बच्चों को उतनी ही टीचिंग्स दी हैं। द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल, और फादर को क्या आता था कि चूड़ी बनाने की, बैंगल्स बनाने की जो कला थी वो बहुत अच्छे से आती थी, और उन्होंने अपने दोनों बच्चों को भी वही सिखाई, वही हेरिडिटी में उनको गिफ्ट दिया। इट इज़ हिज करम, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंड मदर। अब मुकेश की जो ग्रैंड मदर है, उनकी जो दादी माँ है, उन्होंने बोला कि ये इसी के करम है। नरेटर को क्या बोल रही है कि ये तो इसके करम है, इसी की डेस्टिनी है। डेस्टिनी क्या होता है, हमारा फेट है ना, हमारे मतलब
हमारा फ्यूचर, हमारा फेट कह सकते हैं, किस्मत बोल सकते हैं हम इसे। तो एक्चुअली इसी के ही कर्म है, उनकी दादी माँ बोल रही है मुकेश की, हु हैज़ watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles। तो उन मुकेश की जो ग्रैंड मदर है उन्होंने अपने ही हस्बैंड को अंधा होते देखा है। क्यों? क्योंकि बैंगल मेकिंग में वो पॉलिशिंग करते थे, है ना, ग्लास ऑफ बैंगल्स को। तो उस पर पॉलिशिंग करते हुए जो डस्ट उड़ता है ना, वो डस्ट उनकी आंखों में जाता रहा काफ़ी टाइम तक, एंड कंसिक्वेंटली व्हाट ही बिकेम ब्लाइंड। ओके, वो अंधे हो गए थे। सो अभी भी ऐसी कंडीशन में भी जब उन्होंने अपने हस्बैंड को भी देखा है ब्लाइंड होते हुए, तब भी वो मुकेश के लिए कह रही हैं कि ये इसके कर्म है। उन्होंने अपने जो आने वाली हेरिडिटी, जो पीढ़ी है, आने वाली जनरेशन्स हैं, उनको भी ऐसा ब्लाइंडनेस देख कर भी उनको फिर भी बैंगल मेकिंग वर्क में ही झोंका है, उनको वही ऑक्यूपेशन उन्होंने दिया है। क्योंकि उन्होंने मतलब जबकि वो देख रहे थे कि ऐसा इसके बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी जनरेशन को एज अ गिफ्ट अपनी हेरिडिटी, जो उनका ऑक्यूपेशन, जो वर्क है, वो ही दे रहे हैं, डिस्पाइट ऑफ नोइंग दैट इट इज़ वेरी रिस्की फॉर देयर आइज, इट इज़ रिस्की फॉर देयर लाइफ ऑल्सो। ठीक है। कैन अ गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, शी एम्प्लाइज। अब वो क्या कह रही हैं कि गॉड के द्वारा जो दी गई एक लाइनेज है, यानी कि गॉड हमारी किस्मत लिखता है, और गॉड जो हमारी किस्मत में जो जो लिखता है कि हमें कहाँ जाना है, किस प्रोफेशन में जाना है, किस घर में पैदा होना है, ये सारी चीज़ें हम कभी भी तोड़ नहीं सकते। यानी ये सब हमारी किस्मत है। अगर मुकेश ये काम कर रहा है तो ये उसकी किस्मत है, इट इज़ हिज डेस्टिनी, हिज कर्म, कि वो ये काम कर रहा है। मतलब हमने इसको ज़्यादा इन्फोर्स नहीं किया, उसकी फैमिली बोल रही है कि हमने इसको इन्फोर्स नहीं किया किसी भी काम को करने के लिए, बट एक्चुअली ये इसके कर्म है कि ये बैंगल मेकिंग कर रहा है। बॉर्न इन the caste of bangle makers, they have seen nothing but bangles in the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in फिरोज़ाबाद। सो उन्होंने क्या बोला कि हमारी कास्ट में ये मतलब बॉर्न हुआ है, एक बैंगल मेकर्स की कास्ट में बॉर्न हुआ है। तो यहाँ पर आप फिरोज़ाबाद में हर घर में, हर स्ट्रीट में, हर यार्ड में आप क्या देख सकते हैं, दे ऑल आर बैंगल मेकर्स। Spirals of bangles, sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color born out of the 7 colors of the rainbow, lie in the mounds in the unkempt yards, are piled on 4-wheeled hand carts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town. So, स्पायरल ऑफ बैंगल्स, स्पायरल्स यानी क्या होते हैं, स्पायरल्स यानी जो हम कहते हैं ना कर्व हो जाना या घूम जाना, जैसे कि स्प्रिंग होती है ना, वैसे। तो अलग अलग कलर के बैंगल्स हैं, कोई सनी गोल्ड कलर का है, पैडी ग्रीन कलर के हैं, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, और हर जो कलर है वो एक्चुअली उन 7 कलर्स, जो रेनबो के 7 कलर्स है, उनसे ही कहीं ना कहीं बहुत सुंदर सुंदर कलर्स वो लोग बनाते हैं। lie in the mounds in the unkempt yards, और कहाँ पर वो रह रहे हैं कि जो मतलब ऐसी जगह जो बहुत ज़्यादा डार्क है, बहुत ज़्यादा, जहाँ एयर नहीं है, जहाँ लाइट नहीं है, जो ऐसा लगता है जैसे कि कोई कब्रिस्तान हो, बिल्कुल सुनसान इलाका है, जो कि सच में एक ऐसी जगह है जो उनको आगे उनकी कहीं ना कहीं बॉडी को बैड इफेक्ट पहुंचाने वाली है। ठीक है। आर पाइल्ड ऑन 4-wheeled हैंड कार्ड्स। सो एक्चुअली ये जो सारी चीज़ें हैं जो वो बैंगल्स बना लेते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं, 4 व्हील पे, मतलब किसी कैरेज में या किसी गाड़ी पे, उन सबको, जो हैंड कार्ड्स होते हैं ना, जैसे हम ठेले बोलते हैं नॉर्मल हमारी लैंग्वेज में, तो उन ठेलों पर ये अच्छी अच्छी जो बहुत सुंदर सुंदर चूड़ियाँ हैं उनको डेकोरेट करके सजा दिया जाता है। और फिर एक यंग मैन जो है, यानी एक आदमी जो है उस ठेले को या उस कार्ट को धक्का देता है, और वो क्या करते हैं, छोटी छोटी नैरो लेन्स में, छोटी छोटी गलियों में, शैंटी टाउन्स में, जो मतलब बहुत मतलब बेचने के लिए जाते हैं एक्चुअली ना बैंगल्स, मतलब तो ये पहले तो इस तरह से बनाते हैं इतनी मेहनत करके, फिर उसको कार्ट में रख के उसको बेचने के लिए जाते हैं।
And in the dark hut man's next to lines of frames of flickering oil lamps sit boys and girls with their fathers and mothers. और बहुत अंधेरे में किसी एक झोंपड़ी के कोने में नेक्स्ट टू द लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, यानी फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स यानी जो दिया वो जलाते हैं, है ना, लैम्प जलाते हैं ना, ऑयल लैम्प जो जलाते हैं, तेल का दिया, उस दिया का वो जो फ्लेम फ्लिकर करना मतलब क्या होता है, उस जो दिए की जो रोशनी होती है ना, जो लौ जो जलती है वो क्या करती है, धीरे धीरे कभी कभार हिलती रहती है। तो उस फ्लिकरिंग में यानी पूरा तो अंधेरा और सिर्फ एक दिया जल रहा है और वो दिए की लौ जो है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, हिल रही है। वहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स अपने मम्मी पापा के साथ बैठ जाते हैं, वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल ऑफ बैंगल्स। तो जो कलर्ड ग्लास होता है ना, जो कलरिंग ग्लास होता है उसको वो क्या करते हैं, वेल्ड करके गोल गोल बैंगल्स का शेप देते हैं। Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside। और ज़्यादातर वो किस में काम करते हैं, डार्क में ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि डे में तो क्या करते हैं वो हमेशा कभी भी जो दिन का उजाला है वो कभी देख ही नहीं पाते, क्योंकि सारे दिन काम करते रहते हैं अंधेरों में। तो ज़्यादातर उनकी आंखें डार्क में ज़्यादा ही रहती हैं, जबकि बाहर की तरफ लाइट जहाँ पर है, जहाँ उजाला है, वो वहाँ पर बहुत कम देख पाते हैं, क्योंकि दे आर बिजी इन देयर वर्क ऑलवेज। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स। तो कई बार ऐसे होता है कि एडल्ट बनने से पहले ही देयर इज़ रिस्क टू लूज देयर आई साइट्स। तो अपनी आँखों की रोशनी बड़े होने से पहले ही वो कई बार खो देते हैं। ठीक है, I hope you understand the chapter, and we'll take the remaining part of the chapter in the next video. Till then, happy learning. And dear students, I will send you the PDF for these hard words, the word meanings. There you can copy in your fair notebook. Okay, so thank you.